I am going to start Kirchhoff's law, the last part of electrodynamics chapter. So we have two law. One is called KCL, Kirchhoff's current law, and other is called Kirchhoff's voltage law. So Kirchhoff's first law is also known as junction rule, and Kirchhoff's current law, which is shortly it is called KCL. So at any junction, the algebraic sum of current meeting at a point is equal to 0. So you can write this one also. The sum of current entering the junction is equal to sum of current leaving the junction. For example, this is the junction. The meeting point is called junction. तो यह दो तार से करंट आ रहा है. So एक से आ रहा है 2 एम्पियर and other is 3 एम्पियर. So यहाँ से कितना निकलेगा 5 एम्पियर. तो टोटल कितना होगा 0. Incoming current is called taken as positive and outgoing current are taken as negative. So 2 plus 3 they are positive, plus 5 minus 5 is equal to 0. So I can write here free current I1 plus I2 minus I3 is equal to 0. This is considered as I3, this is considered as I1, this is considered as I2. So I1 and I2 are taken as positive, I3 is negative. The total summation is what? 0. And this principle is also called conservation. This principle obey conservation of charge. मतलब conservation of charge क्या बोलते हैं कि चार्ज neither be created nor destroyed. मतलब जितना चार्ज आएगा जंक्शन में उतना चार्ज निकालना पड़ेगा. ओके So next one is Kirchhoff's second law, which is also called loop rule, and which is called Kirchhoff's voltage law, KVL. Okay. So the algebraic sum of change in potential around a closed loop is 0. This is only valid for closed loop, closed circuit. It is not valid for open circuit. This is an important point. For example, this is a closed loop A, B, C, D. So here the direction is shown clockwise. So sum of potential changes, change of potential for the whole circuit is equal to what? 0. This is valid for what? Closed loop only. Here some assumption will be there. Potential gain is considered plus B. Potential drop where losses take place is considered as minus B. So for closed loop, for this circuit, integration of plus minus B1 plus minus B2 plus minus B3, कहीं पे गेन होगा तो प्लस होगा, लॉस होगा तो माइनस होगा. That's why taken plus minus is sum for the whole circuit 0. So VA minus VA मतलब घूम फिर के आके A से जाके घूम फिर के A में आओ तो दोनों का वैसे पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा 0. मीन्स A B C D whole for whole the circuit. So जैसे जो फर्स्ट लॉ है वो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज प्रिंसिपल में वर्क करता है. सिमिलरली सेकेंड लॉ वर्क इट्स ओबे प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल. कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल जब एप्लीकेशन मतलब न्यूमेरिकल सॉल्व करेगा ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा. हाँ, हाउ टू अप्लाई किर्चॉफ्स लॉ. हम लोग किर्चॉफ्स लॉ अप्लाई करके कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स आपको याद रखना है. So first point is draw current from one or more cell. ठीक है, मतलब सर्किट में एक से ज़्यादा सेल हो सकते हैं. सेल से करंट निकालना है, पहला बात है. सेकेंड है चूजिंग एक लूप विच इज क्लोज्ड. मतलब हम लोग हो सकते हैं सर्किट में 4 लूप हो तो एक एक लूप करके हम लोग चॉइस करना है, लेना है. उसमें हम लोगों का क्या करना है, आपका जो लूप क्लोज्ड हो, ओपन होने से नहीं होगा क्योंकि इट्स ओनली वैलिड फॉर व्हाट? क्लोज्ड लूप. ये दोनों पॉइंट का तो इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन थर्ड जो पॉइंट है, थर्ड एंड फोर्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. डायरेक्शन ऑफ लूप को हम लोग पाथ भी बोलेंगे क्लॉकवाइज व एंटी क्लॉकवाइज. मतलब जैसे ये सर्किट है, ये दिया हुआ है. सो इसमें हम लोग ये क्लॉकवाइज लिया है, हम लोग का ऊपर है, हम लोग कौन सा डायरेक्शन में लेंगे? क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं. ओके. सो नंबर 4 पोटेंशियल ड्रॉप एंड पोटेंशियल गेन. ये जो मैंने पॉइंट बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे मान लेते हैं कि ये एक बैटरी है जो पॉजिटिव है नेगेटिव है. अगर हम लोग ये डायरेक्शन में पाथ ले रहे हैं, लूप एक्स डायरेक्शन में ले रहे हैं,
तो हायर टू लोअर, हायर टू लो, हाई वोल्टेज टू लो वोल्टेज डायरेक्शन में ले रहे, तो यहाँ पे वोल्टेज को ड्रॉप बोलते हैं, वोल्टेज लॉस हो रहा है, ठीक है, वोल्टेज ड्रॉपिंग। ड्रॉपिंग को हम लोग क्या बोलेंगे, माइनस लेंगे, ठीक है, माइनस वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। हायर टू लोअर में डायरेक्शन में अगर ले रहे तो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है। अगर उसका ऑपोजिट में से हायर टू लोअर है, उसका ऑपोजिट में अगर ले रहे तो पोटेंशियल क्या है, गेन, गेन। ये रूल को आप याद रखना है। फिर रेजिस्टेंस के केस में भी, क्योंकि सर्किट में रेजिस्टेंस भी तो होगा, जैसे ये हाई वोल्ट है, लो वोल्ट है, ठीक है, बैटरी का पॉजिटिव पैसे कनेक्टेड है, नेगेटिव पैसे कनेक्टेड है। तो अगर उसी डायरेक्शन में अगर हम लोग लूप को ले रहे हैं, लूप को ले रहे हैं ये, तो डेट इज नेगेटिव होगा, ठीक है, पोटेंशियल यहाँ पे ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप, एनर्जी यहाँ पे लॉस हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे ऑपोजिट डायरेक्शन में डायरेक्शन को लूँ तो डेट इज गेन, गेन हो रहा है, एगेंस्ट में जा रहा है, गेन। सो यहाँ पे गेन, यहाँ पे लॉस, यहाँ पे बैटरी का गेन, सॉरी लॉस, यहाँ पे क्या है, गेन है। 4 रूल, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा शुरू में, लेकिन धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे ना क्लियर होता रहेगा। सो एक न्यूमेरिकल करते हैं। ये क्वेश्चन तो आप लोग ऐसा सिंपल ओम्स लॉ यूज करके भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा न्यूमेरिकल फिर नहीं आएगा। समझाने के लिए सिंपल क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। सो 10 वोल्ट बैटरी है, 2 ओम रेजिस्टेंस और 3 ओम रेजिस्टेंस है। सो लूप है तुम्हारे ए बी सी डी, तो फाइंड द करंट इन ईच रेजिस्टर। सो हम लोग एक क्लोज लूप ले लिए, ए बी सी डी ई ए। सो यहाँ से हम लोग करंट निकल रहे हैं आई, पहले तो करंट निकलना है, फिर यहाँ पे आई जा रहा है। अभी आप देखो, पहले तो हम लोग बैटरी को देखते हैं, ठीक है। करंट का डायरेक्शन में हम लोग पाथ को ले रहे हैं, करंट का डायरेक्शन में हम लोग पाथ को ले रहे हैं, ओके। मतलब ये हाई वोल्टेज है, लो वोल्टेज है, पाथ इसका ऑपोजिट में है, ये पाथ है। सो क्या होगा, गेन होगा। सो हम लोग गेन मतलब प्लस 10 वोल्ट। फिर आप यहाँ पे आ रहे हाई वोल्टेज से, क्योंकि ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, ये हाई है, यहाँ पे लो है, लिख देते हैं HL समझाने के लिए, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में है ये वाला केस है, दिस केस। तो क्या होगा, माइनस I इंटू 2 रेजिस्टेंस 2। सेम यहाँ पे भी होगा, ये H होगा, ये लो होगा, उसी डायरेक्शन में जा रहा है, यानी माइनस I इंटू 3 इज इक्वल टू व्हाट, 0। मतलब टोटल पोटेंशियल चेंज का समेशन क्या है, 0। और तो कोई भी पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा है, बैटरी है, यहाँ पे चेंज है, यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। सिंपल हम लोग केवीएल यूज किया, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो अभी सोल्व करो, एन बी, यहाँ पे हो जाएगा टोटल 5I इज इक्वल टू 0, 5I इज इक्वल टू 10, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 एम्पियर। दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में है, तो दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो दोनों में कारण क्या होगा, सेम होगा। सो नेक्स्ट न्यूमेरिकल, ये बोर्ड लेवल का है, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में आता है। 2 बैटरी दिया हुआ है, 4 वोल्ट एंड 10 वोल्ट, ओके। बाकी रेजिस्टेंस 2 ओम, 1 ओम, 2 ओम एंड 1 ओम, 4 रेजिस्टेंस है। सो पहले करंट को निकाला मैंने, यहाँ से निकाला, ये 10 वोल्ट है तो ये बड़ा बैटरी होगा, यहाँ से करंट ज़्यादा होगा। सो यहाँ से आई निकाल के आके ऐसे जा रहा है। अब ज़्यादा तो क्वेश्चन में करंट का डायरेक्शन दिया रहेगा, हाँ। फिर आके यहाँ पे आई निकल रहा है, यहाँ पे एक्चुअली ये वोल्टेज कम है, बल्कि यहाँ पे पॉजिटिव में एंटर हो रहा है, क्योंकि इससे इसका पावर क्या होगा, ज़्यादा होगा। अभी हम लोग पाथ को क्लॉकवाइज ले लिया। अभी देखो आप इस केस में लॉ 2 कहा जा रहा है, हाई, ठीक है, लॉ से हाई जा रहा है पाथ, तो क्या होगा, प्लस होगा, तो +4। ये दोनों रूल याद करने से हो गया, ये ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। प्लस अभी देखो यहाँ पे भी रेजिस्टेंस में भी ना आपका पाथ जो है ना, पाथ जो क्या हो रहा है, लो से लेके हाई में जा रहा है, ठीक है। पाथ लो, कारण इधर आ रहा है ना, तो यहाँ पे लो वोल्टेज है, उसका हाई वोल्टेज है, ठीक है। पाथ उसका उल्टा है, तो क्या होगा, प्लस, ये वाला केस है।
फिर इसमें भी सेम केस है, क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे भी सेम केस है तो क्या होगा प्लस होगा। बट यहाँ पे देखो आप पाथ है, पाथ है आपका हाई से लेके क्या लो तक, ये वाला कैसे हाई से लो तक, हाई से लेके लो या हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज से करंट को देखना है। सो माइनस होगा, ये वाला केस माइनस होगा। फिर यहाँ पे पाथ क्या है ऐसा कैसे से, ठीक है कारण उल्टा है तो क्या होगा प्लस प्लस, तो इज इक्वल टू क्या होगा 0। सो टोटल सोल्व करने से कारण कितना आएगा 1 एम्पियर। तो कोई भी अगर सर्किट है आपको लूप दो एंट्रेंस लेवल में 2-3 लूप वाला क्वेश्चन देगा तो अलग अलग लूप के लिए आपको निकालना है, फिर लीनियर इक्वेशन से आपको सॉल्व करना है। तो धीरे धीरे बेसिक से शुरू करो, प्रैक्टिस करो। मैं कोशिश करूँगा ऐसा तो अभी मैं इसमें 1-2 क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर एप्लीकेशन पार्ट कराऊंगा वेस्टर्न ब्रिज, मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर। उसके बाद मैं कोशिश करूँगा इतना तक आप प्रैक्टिस करो, 1-2 न्यूमेरिकल एक वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा ओनली फॉर एंट्रेंस तब तक। लेकिन आपका रूल वगैरह आप प्रैक्टिस करके रखो, नहीं तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ओके, प्रीवियस का भी बहुत सारा चीज़ आपका शायद मैं कुछ स्टूडेंट से रेगुलर मिल रहा है आंसर, बाकी लोग अगर प्रैक्टिस नहीं करो तो यहाँ पे नहीं होगा। हाँ, बोर्ड में आपको हालत ख़राब हो जाएगा। और एक बार प्रैक्टिस अगर हो गया, समझ गया, तो बोर्ड तो कुछ भी नहीं, नथिंग। आप एंट्रेंस का भी हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या है, सीखोगे तो पूरा सीखोगे, नहीं तो कुछ भी नहीं सीखोगे। ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट है, याद करके कुछ होने वाला नहीं है। ओके फाइन।